Hello guys, welcome to our channel. And in this video, we are going to take gate question from group theory. As you all know that group theory, it is an algebraic structure, and this algebraic structure is a set under any binary operator will be defined as a group if it satisfies certain properties. And the properties are closure property, it should have associative property, it should there should exist an identity element, and there should be an inverse of every element which is present in that group. So the question is, the set given is 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 as an elements under multiplication modulo 10 as an operator. So they have given that this set under the operator is not a group. It is already given कि ये group नहीं है. Given below are four plausible reasons, and we have to identify which one of them is false. Like these are the certain statements given to us, and we have to check whether these statements are absolutely correct with respect to this set and the operator, or is there any statement which is false. So the one which is false is statement with respect to this algebraic structure will be the correct option. So to find out that which is the correct option among all these, we need to construct a composite table for this algebraic structure. So what we will do, that we will construct one composite table for the same. So let's draw a composite table for the question. So हम क्या करते हैं, composite table के लिए हम सारे elements को यहाँ पे define करते हैं. तो 1, 2, 3, it's 5, 7, 8, and 9. Like this, we have 1, 2, 3, 5, 7, 8, and 9. Now we have 1 multiply mod 10. तो मेरे पास जो ऑपरेटर दिया है वो है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10, तो मैं वही ऑपरेटर यहाँ अप्लाई करूंगी. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 इज 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 mod 10 विल बी 2. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 is a multiplied by b mod 10. तो दिस विल गिव यू अ काइंड ऑफ थिंग कि हाँ जो रिमाइंडर या रेजिडुअल वैल्यू बचती है 10 को डिवाइड करने के बाद, 10 से डिवाइड करने के बाद, वो रेजिडुअल और रिमाइंडर वैल्यू को हम यहाँ पे एज अ अपना वैल्यू कंसिडर करते हैं. दैट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू. तो अभी हम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 mod 10 करेंगे तो 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 एंड 9. लाइक दिस. 2 के साथ 2, 2 multiply by 2, 4. So that will give you 4. 6, 2 multiply by 5 mod 10 will give you 0 क्योंकि 10 will divide 10 and remainder value will be 0. 2 multiply by 7 mod 10 will give you 4. It's 16. So therefore you will get 6. 9, 2 multiply by 9 will give you 18. Therefore you will get 8. Like this 3, this will give you 6, this will give you 9. There you will get 15 mod 10 will give you 5. 21 will give you 1. With 24 you will get 4. With 27 you will get 7. Coming to the 5. So 5 multiplied by 1 will be 5. 5 multiplied by 2 mod 10 will be 0. 5 multiplied by 3, 15 mod 10 will be 5. 5 multiplied by 5, 25 mod 10 will be 5. Like this, 35 will give you 5 as a remainder. With respect to 8, you will get 0. And here you will get 5. Coming to the next one, 7, 14. So you will get 4 remainder value. With respect to 3, you will get 1 remainder value. Here it will be 5. 49 के साथ अगर हम करेंगे तो 9 मिलेगा. यहाँ पे 56 के साथ 6 मिलेगा. एंड 63 के साथ में 3 रिमाइंडर मिलेगा. 8 के साथ 8, 16. So we have 24 remainder 4, 40 remainder 0. With respect to 7, you will get 6. With respect to 64, you will get 4. And here with respect to 9, you will get 72 and remainder is 2. 9, 218, 327, 5, it's 63. With respect to this, you will get 3. 9, 8, 56. So with respect to this, you will get 6. 9, 8, 72. So here you will get 2 actually. 9, 9, 81. So you will get 1. So as you can see, this is my composite table. अब इस composite table से हम सारी properties को identify कर सकते हैं. जैसे आपकी जितनी भी एंट्रीज आपने टेबल में की हैं, ये सारी की सारी एंट्रीज
आपकी वही एलिमेंट्स होने चाहिए जो आपको सेट में दिए हैं। अगर उनमें से कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जो बाहर का होता है, देन इट इज नॉट अ क्लोज प्रॉपर्टी, तो वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो एक्चुअली में सिंस सम एलिमेंट्स आर देयर, लाइक जैसे 4 6 0, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके, ये सारे मेरे एलिमेंट्स कहीं भी इस सेट में नहीं दिए हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि 0 6 4 they doesn't belongs to 1 2 3 5 7 8 and 9। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10। देयरफॉर जो मेरा पहला ऑप्शन है वो एक्चुअली में इन्होंने सही दिया हुआ है, देयरफॉर हम कहेंगे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। और आपको फाइंड क्या करना है कि फॉल्स कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये तो इससे एलिमिनेट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट को फाइंड करने के लिए कि वो सही है या गलत, मुझे ये देखना पड़ेगा कि इनके इनवर्स क्या क्या हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए जो आपका फर्स्ट रो है, दिस इज एक्चुअली अ प्राइमरी रो, मैं कह सकती हूँ कि मेरी ये प्राइमरी रो इनमें से किस रो के इक्वल आ रही है। तो आपके इनमें से जो भी रो ऐसी होगी जो प्राइमरी रो के पैटर्न को मैच कर रही है, उसके रिस्पेक्टिव कॉलम, यहाँ पे जो रो हेडर है उस रो के एलिमेंट को मैं कहूंगी दिस इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एज यू कैन सी 1 2 3 5 7 8 9 and 1 2 3 5 7 8 9 following the same sequence, therefore I can say that 1 is an identity element for this particular algebraic structure। अब इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के ही बेसिस पे मैं ये देख सकती हूँ कि हर एलिमेंट का इन्वर्स क्या है। तो अगर आपको पता करना हो कि हर एलिमेंट का क्या इन्वर्स है, तो आप हर एक रो में जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट दिया है उसको मार्क कर सकते हैं। लाइक इस रो में 1 दिया है, इसमें नहीं दिया, तो अगर इसमें नहीं दिया है तो इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट, मैं सीधे सीधे यहाँ कह सकती हूँ कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट, लाइक दिस, यहाँ 1 दिया है तो आई नो इट इसका इसका इन्वर्स होगा। लाइकवाइज 5, 5 के लिए भी हम कह सकते हैं कि इसका भी मेरा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो हेयर इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट फॉर द एलिमेंट 5। 7 रो में दिया हुआ है, 8 के साथ फिर से वही है, नहीं दिया हुआ हाँ, तो हम कह सकते हैं इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट। सो अब आप देखिए कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम कह सकते हैं फॉर 2 5 and 8 डजंट हैव एन इनवर्स, इन एलिमेंट्स का इनवर्स नहीं है। तो अगर इनमें से किसी का भी इनवर्स नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था कि 2 का इनवर्स नहीं है, ये ट्रू है। और 8 का इनवर्स नहीं है, ये भी ट्रू है। बट ये कह रहे हैं 3 का इनवर्स नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस 3 हैज इट्स इनवर्स। क्यों? क्योंकि इस रो के अंदर, 3 वाली रो के अंदर 1 एग्जिस्ट करता है और 3 का इनवर्स आता है 7। देयरफॉर द थर्ड स्टेटमेंट यानी कि जो सी ऑप्शन है वो आपका फॉल्स है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये मेरा गलत स्टेटमेंट है, ये मेरा फॉल्स स्टेटमेंट है। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड विल बी एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका ये जो ऑप्शन है वो आपका फॉल्स ऑप्शन है फ्रॉम दिस कॉम्पोजिट टेबल। So it is like this is the option for given to us. Now coming to the next question. Now next question says that we have a set here. It consists of elements 1 2 4 7 8 11 13 14. It is a group under multiplication modulo 15। तो हमें ये पहले से दिया हुआ है कि ये ग्रुप है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आपकी आइडेंटिटी और इनवर्स, ये सारी चीजें इसमें एग्जिस्ट करती हैं। बेस्ड ऑन दिस assumption वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ 4 and 7 रिस्पेक्टिवली। तो 4 और 7 के साथ मुझे बस ये आइडेंटिफाई करना है कि उनका इनवर्स क्या होगा। तो इसके लिए आप चाहें तो कॉम्पोजिट टेबल बना सकते हैं, बट दैट इज क्वाइट अ लेंदी प्रोसेस क्योंकि एलिमेंट्स भी ज़्यादा हैं और मुझे 15 से उसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो मैं ये देखूंगी कि हाँ, मेरे पास जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दिया हुआ है, दिस मल्टीप्लिकेशन, सो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली 1 इज
द आइडेंटिटी एलिमेंट, हमारा वन आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा मिलेगा। आप ये देख सकते हो, क्योंकि आप किसी भी एलिमेंट को, आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि आप एक ऐसे एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करें ताकि आपको वही एलिमेंट मिले। तो आप इनमें से कोई भी एलिमेंट उठाइए, आप ये देखिएगा कि 1 × mod 15, 1 will be 1, right? 1 multiply mod 15, 2, you will get 2. 1 mod 15 multiply by 4, you will get 4, क्योंकि वही एलिमेंट मिलता है जब भी हम किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आप यहाँ मॉड की बात कर रहे हैं तो मॉड में भी आपको वही चीज मिलेगी। तो आप 1 के साथ किया, 7 के साथ कर रहे हो, 8 के साथ करोगे तो 8 मिलेगा रिमाइंडर में। अगर 1 को 11 के साथ करेंगे तो भी मुझे 11 मिलेगा। लाइक दिस 1 को 13 के साथ अगर हम करेंगे तो मुझे 13 आंसर में मिलेगा। लाइक दिस अगर मैं 1 mod 15 14 करती हूँ तो मुझे 14 मिलेगा। तो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कि 1 विल बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी मुझे इनवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मुझे ए का वो एलिमेंट यहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है जिसके लिए उसकी वैल्यू 1 आती हो। तो एक्चुअली में अब आपको 4 × mod 15 यहाँ पे वो एलिमेंट फाइंड आउट करना है ताकि आपको मॉड में खाली 1 मिले। तो अगर आप देखो तो आप यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स के साथ आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ वो कौन सा नंबर ऐसा होगा कि जब आप उसे 15 से मतलब डिवाइड करते हैं, मतलब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो आपको रिमाइंडर वैल्यू आपको यहाँ पे 1 मिल रही है। So in that case, you will get that what will be the answer here. तो अगर आप यहाँ पे देखें that 4 multiply by 14. So here I'll get 6 and here 4 ones are 4 and 1 5. So I'll get 56 here. तो अगर आपको यहाँ 56 मिल रहा है तो डेफिनेटली 56 मॉड अगर आप 15 के साथ लेते हो तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो तो नहीं आ रही है यहाँ पे। तो अगर ये नहीं आ रही है तो इसका मतलब दैट इज नॉट एन आंसर, मतलब 14 is not a correct answer for the 4. Now coming to the 13. So here we have 13. So 4 multiplied by 13, if I identify, then this will give me 2 and this is providing me 5. Now with this value, if I'll take mod 15, so again with mod 15, you will get 7 as a remainder value. So again, I'll say that this is not the correct answer for the this particular thing. Here you will get the 11 somewhere. Now coming to the next one, 4 multiplied by 11. So 11 will give you 44. And if you will take mod 15 with 44, so you will not get 1 as an answer, rather than you are getting 14. So again, I'll come back to the next one. So next, it is given to me that 4 multiplied by 8. So with 4, 8, you have 32. And with this mod 15, you will get remainder value only 2. Now coming to the next thing, 4 multiplied by 7. So with 4 multiplied by 7, you are getting 28, and 28 mod 15 will be giving you somewhere value. Here it is not providing you the complete value. So we can say that with 15 you will get the value, I think, 8 13 value you are getting, right? 4 with multiplying by 4, you are having 16, and with this 16 mod 15 you are getting answer 1. तो आपको क्या पता चला कि जब हम 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे रिमाइंडर वैल्यू 1 मिल रही है। तो यहाँ पे जो 4 का इनवर्स है वो आ जाएगा 4। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। This can be the correct option, but here we have identified only for the 4. Now coming to the 7, like this we have to find one number through which I will multiply it and will find that this is going to be the remainder value 1. So here, if I'll go for 717, this will give you 7, 7 to 14 will give you 14. तो अब यहाँ पे हम करके भी देख सकते हैं। तो ये तो मुझे 7 मिलेगा। 7 mod 15, 2 will give you only 4 value, sorry, 14 value will give you. And like this, you have 7,
15 4, so you will get 28. तो जब आपको यहाँ पे 28 मिलेगा तो 28 के साथ आप जब mod 15 लेंगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा? 13. Now coming to the next one, like this I can check here, 7 mod 15, 49, and 49 mod 15 will give you here value 4. Like this, 7 mod 15 8, so this will give you actually value 56, and with 56 mod 15 you will get 11. Like this, 7 mod 15, and here I have to give for 11, so there you will get 77, and this will give you 2. And अगर हम आगे जाते हैं और 7 mod 15 13 लेते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 91, और 91 के साथ आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। तो आपको पता चल जाएगा कि 7 के 13 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपको रिमाइंडर 1 मिल रहा है। सो आपका ये जो है, दिस इज द इनवर्स ऑफ 7। तो द थर्ड ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. Now, coming to the next one, let's take the next question in the series. In this question, we need not to identify anything. Rather, we have to simply identify कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ग्रुप क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं होती है। सो अगर देखा जाए तो ग्रुप के लिए हम जो प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं वो सबसे पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। दूसरा हम फॉलो करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और जो तीसरी प्रॉपर्टी हम फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप इनवर्स के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट आता है, वंस यू विल गेट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट के लिए है या नहीं ये हमें डिफाइन करता है। बट अगर इन सब के साथ अगर मैं एक प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी और ऐड कर देती हूँ जिसको मैं बोलती हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इस दोनों को मतलब इन सबको मिला के ये कहलाता है इट्स एन अबेलियन ग्रुप, राइट। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपकी, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप के लिए नेसेसरी है, बट फॉर द ग्रुप इट इज नॉट मैंडेटरी। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस ऑप्शन will be an correct answer for the given question, because इसके लिए वो आपका जरूरी नहीं होगा कि आप उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कहीं पे भी सर्च करें। आप चाहें तो उसको आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ और सिर्फ ये 4 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वीडियो।